Moving forward, our next guest, she is a rare leader who bridges academic excellence with dedicated public service. A former professor with a PhD in education, let me introduce Dr. Medha Tai Kulkarni, a distinguished member of Parliament in the Rajya Sabha. From serving as a Pune MLA to her tireless work in women empowerment and urban development, she leads both with intellect and has deep grassroots connections. Ladies and gentlemen, please put your hands together and give a warm welcome to Dr. Medha Tai Kulkarni. Namaste everyone. I would like to congratulate BBNG for organizing this event for the 10th time. Honorable dignitaries on the dais, Swami Jitendranath Saraswati ji, Mr. Vithalji Kamath sir, Prakash Bhalerao sir, Ravindraji Sathe, Udayji Nirgudkar, Shailendraji Goswami, Honorable office bearers of BBNG, Shripad Kulkarni, Mukunda Kulkarni, Arvindji Kolarkar, Suyog Naravane, Anandji Chitale, Nandanji Gumaste and other all office bearers. Namaste to all. Honorable entrepreneurs from all over India, I congratulate you for being here. I welcome you in Pune. I came to know and I can see more than 1200, more than that also are gathered here, all businessmen across India and other parts of world. I came to know that one of the businessmen, Tapan Kumar Nath, who is from Bangladesh, is also here. We are Brahmins, so घोषणा भी दे देंगे. मैं जोर से बोलूंगी, आप मुझसे जोर से आप बोलेंगे. जय परशुराम, जय जय परशुराम, भारत माता की वंदे. So Shripad Kulkarni, in his first speech, he told us that this is a Sanghatan, but this conference is for businessmen and entrepreneurs. So in 2 days of this conference, they have planned that how you will grow, how you will expand, how you can meet other entrepreneurs from across India and exchange your business between you. And I was impressed with Swamiji's speech, how he inspired us that why we are working,
how we can work is the agenda of today's conference. How we can work, how we can grow is our agenda. But why we are doing all these things? What will be the motivation? प्रेरणा क्या होनी चाहिए और किस लिए काम करना चाहिए? ये स्वामी जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से इंस्पायर किया। देखिए आज देश बढ़ रहा है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स विकसित भारत. We want to remove this विकसनशील भारत tag and we want to go into विकसित भारत. ये कैसे हो सकता है? ये प्लानिंग जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, उसी तरह अलग अलग देशवासियों को भी माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है कि आप भी इसमें सम्मिलित हो जाइए. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. परसों ही बजट रखा गया. निर्मला जी ने 9वीं बार बजट रखा. आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में क्या कहा, ये सब आपने सुना ही होगा कि कैसे आने वाले समय में. मोदी जी ने भी ये कहा है कि 20वीं सदी का सेकंड क्वार्टर बहुत भी अहमियत रखने वाला था और ये क्वार्टर 21वीं सदी का भी अहमियत रखने वाला है. तो ये बजट केवल एक वर्ष का नहीं है, आने वाले वर्ष का है. तो फोकस किस पर किया गया है? बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स पर. और हमने देखा है कि भारत देश में आज मतलब हम अगर स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप्स में आज हम तीसरे नंबर पर हैं देश में. जीडीपी बढ़ रहा है, फिक्स्ड डेफिसिट कम हो रहा है. आदरणीय उदय जी ज़्यादा बात कर पाएंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट है इसमें. लेकिन ये सब अगर हो रहा है देश में तो फोकस इस पर है. तो जो लोग काम करने वाले इनकम टैक्स देकर देश को और भी ज़्यादा तरक्की देश करे, इसके लिए आपका जिनका सपोर्ट रहता है ऐसे लोगों के ऊपर फोकस इस बजट का है. चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी हो, इन सब पर ये ज़्यादा फोकस है. और मैं आपसे अनुरोध करने वाली हूँ कि आप इसमें और ज़्यादा आपकी तरक्की करें. अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर आप न्यूज़पेपर भी खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उनमें अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स के अगर सरनेम आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे लोग ब्राह्मण्स हैं. मैं हमेशा ये देखती हूँ कि इन सब लोगों में सबसे ज़्यादा तज्ञता रखने वाले जो आर्टिकल्स लिखने वाले होते हैं ब्राह्मण हैं. So we are intellectuals, we are hard workers, we are honest, we are loyal to भारत, we are Brahmins. तो इसलिए आदरणीय स्वामी जी ने हमसे थोड़ी अपेक्षा की है और मैं मानती हूँ कि अगर काम क्यों करना है, कैसे करना है, ये अगर समझ में आएगा. क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमसे ज़्यादा टकराव आपने आज तक इतनी तरक्की की है. इतनी तरक्की करने में आपको जितने परिश्रम झेलने पड़े, ज़्यादा परिश्रम केवल आपकी कास्ट की वजह से रहे होंगे. हाँ, कि ये रेजिस्टेंस, ये टकराव जो है, हमें कोई भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, हमारे लिए रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी आप इतने आगे बढ़कर आए. आपके खुद के बलबूते पर आपका जो भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज है ये सब करके हार्ड वर्क करके आप यहाँ तक आए हैं और इससे भी ज़्यादा आपकी तरक्की हो. इसलिए ये BBNG ने रखा है. और श्रीकांत जी ने कहा कि श्रीपाद जी ने कहा कि मैं छोटे से छोटे कार्यक्रम में आती हूँ, मुझे आना ही भी चाहिए. मैंने कभी भी डिनाई नहीं किया कि मैं ब्राह्मण हूँ. हाँ, हम ब्राह्मण लोग सबके लिए काम करते हैं और सबसे ये कहते हैं कि अपना ब्राह्मण होना भूल जाओ, हिंदू है ना, हिंदू होना ये याद रखो. लेकिन ये जैसे मैं आपसे कहूँगी तो बाकी लोगों से भी कहूँगी, जो भी हिंदू है, कि पहले हिंदू होना हमें याद रखना है और देश के लिए काम करना है. तो हिंदू एक हो जाओ. अगर हिंदू हम एक नहीं होंगे और हिंदुत्व के लिए काम नहीं करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, इंस्पायर कौन करेगा. तो मैं आपसे ही अनुरोध करूँगी. मैं जब वक्फ का काम कर रही थी, वक्फ अमेंडमेंट बिल का, तो एक उदाहरण
हम जब हाजी मलंग कहते हैं ना, हाजी मलंग, वो कोई हाजी नहीं है, वो नाथ पंथीय स्थान है मच्छिंद्र नाथ का। मलंगगढ़ उसे कहा जाता है, मलंगगढ़। ये हाजी कब बन गया? कौन व्यवस्थापक था? अपना ही था, कोई अपने समाज का था, जिन्होंने आग्रह पूर्वक इसका विरोध नहीं किया। तो अगर वो स्वामी जी की बात सुनते तो ऐसा नहीं करे थे। स्वामी जी उनसे मिले नहीं उस जमाने में। तो अपना इंटेलेक्चुअल पावर कहाँ लगाना है, अपने लिए काम करते करते देश के लिए कैसे काम करना है, ये हमें सीखना है। और यही हमारे नेतृत्व ने हमें सिखाया है। मैं एक जगह भाषण कर रही थी तो मैंने यही कहा था कि लोकमान्य तिलक ने खुद के लिए कुछ नहीं किया, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने खुद के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया। संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान विश्वात्मक देव को आवाहन करते हुए सभी लोग सुखी हो जाए इसके लिए आवाहन किया। तो ब्राह्मण की ये विशेषता है कि वो खुद के लिए कम और बाकी लोगों के लिए ज्यादा सोचता है। कभी कभी एकाध उसका एक्सेप्शन हो सकता है, ये एक्सेप्शन न हो इसलिए स्वामी जी ने हमें ये दिशा दी है कि एक भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए समाज में। और खुद के लिए सोचना ये तो हर एक जीवित का काम ही होता है, इसमें कोई दो राहें नहीं हो सकती कि नहीं सोचो, लेकिन खुद के लिए सोचते सोचते समाज के लिए सोचना है। और आपके ऊपर देश की दृष्टि लगी हुई है कि देश जब विकसित होगा तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे जो देश का नाम ऊंचा करेंगे। ज़्यादा वक्त मैं किसी का लेने वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ इस सभागार में आपने बुलाया, बहुत अच्छा सम्मान किया। अभी हलाल का मुद्दा चल रहा था, इसलिए मैं उसी केवल एक मुद्दे पर बात करने के बाद मेरा वक्तव्य समाप्त करूंगी। अभी स्वामी जी ने कहा, मैं भी एक कट्टर हिंदुत्ववादी हूँ। स्वामी जी ने अभी कहा कि केवल हलाल का खाना ही विशिष्ट आस्था को मानने वाले लोग लेते हैं। अगर आप लोग समझो इस होटल में नॉनवेज सर्व होने वाला है कि नहीं मालूम नहीं, मुझे नहीं होने वाला। किसी भी 5 स्टार होटल में आप जाएंगे तो आपको जो नॉनवेज मिलता है, अगर आप किसी भी एयरलाइंस कंपनी में खाना जो मिलता है वो नॉनवेज प्रीफर करेंगे, तो जो नॉनवेज मिलता है आप कभी भी ये नहीं पूछते कि ये नॉनवेज जो दिया गया है वो नॉन हलाल है क्या, ये कभी भी नहीं पूछते। जो मिलता है खा लेते हैं आप। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप आग्रह पूर्वक ये कहिए कि मैं तो हिंदू हूं, मतलब मैं तो शाकाहारी हूं, मैं आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए कह रही हूं। हर एक हिंदू ने ये पूछना चाहिए कि मुझे नॉन हलाल नॉनवेज चाहिए। तो नॉन हलाल नॉनवेज रखने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन हम आग्रह ही नहीं करते। मैंने 0 आवर लगाया था नॉनवेज के इस हलाल के बारे में, और मैंने कहा था कि आज हलाल एक सेकंड इकोनॉमी बनने जा रहा है, और ऐसी इकोनॉमी जो आतंकवादियों का समर्थन करती है और आतंकवादी लोग जेल से छूट जाए, फांसी से बच जाए, इसलिए उनको लॉयर्स प्रोवाइड करती है। ये ऐसी इकोनॉमी। और आजकल आप सब बिजनेसमैन हैं, इसलिए ये मुद्दा उठा रही हूं। आजकल अलग अलग बिजनेसमैन फॉरेन में जो अपना माल बेचते हैं, ऐसे लोग हलाल सर्टिफिकेट ले लेते हैं ताकि उनको फॉरेन में उनका माल फॉरेन में बेचा जाए।
कोई दिक्कत ना आए। मैं सभी बिजनेसमैन को अनुरोध करूंगी कि कोई ज़रूरी नहीं है, अपनी आबादी यहाँ की इतनी ज़्यादा है, अगर एक आध आपको ऑर्डर नहीं मिलती है बाहर की तो भी चलेगा, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट मत लीजिए। मैं हमेशा अपने पुणे के चितड़े के प्रोडक्ट्स बाहर देती हूँ सबको। आज इतनी उन्होंने तरक्की की है, बाहर भी उनके व्यंजन जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लिया है। तो उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं ही, मतलब मैं यहाँ कोई जाहिरात नहीं कर रही हूँ, उनकी कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी के मॉडरेशन में न आके हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लिया है। आजकल वुड, कांच, किसी भी चीज को, मतलब नॉन एडिबल आइटम्स को भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। इससे बचे। आप सबके लिए बहुत बहुत नहीं चाहिए, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी गवर्नमेंट आपके साथ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी आपके साथ है। अगर मेधा कुलकर्णी नामक इस बहन की आपको कभी याद आ जाए कि आपके कभी काम किसी जगह अगर अटके पड़े हो, इफ एनी रेजिस्टेंस यू फील एनीवेयर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आप बता दीजिए कि आपने ये BBNG के, मैं हमेशा रेडी रहूंगी कि कोई भी अगर हमारा ज्ञाति बांधव अगर यहाँ किसी मुसीबत में है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है और खास करके आप विशिष्ट जाति से बिलोंग करते हैं इसलिए आपको तकलीफ है, तो भी आप बता दीजिए, हम हमेशा तैयार रहेंगे। खुले और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है, आप जो भी आपकी दिक्कत है, आप हमेशा किसी भी समय एनी टाइम यू कैन कॉल मी एनीवेयर। अगर पुणे के बाहर भी, महाराष्ट्र के बाहर भी कोई भी प्रॉब्लम है, मेरी जितनी ताकत है उतनी ताकत आपके पीछे में लगा दूंगी। धन्यवाद। फिर एक बार BBNG का बहुत बहुत आभार।